session we are taking the preparation of polymers and the basic things of the polymers. See, first of all, what is meant by polymer? So polymer is a macromolecule which is obtained by the chemical reactions of the simple organic molecules like ethene. Its reaction with different molecules of ethene, other molecules of ethene, in presence of suitable catalyst under pressure, under particular temperature, okay, and we are getting the n molecules of ethene are connected with each other. So from ethene we are getting polyethene, and we know that polythene bags. So polymers are very useful in our daily routine lives. Okay, so again polymer is a macromolecule. Okay, now this single unit is known as monomer, and this macromolecule is known as the structure of polymer. Okay, so monomer का मतलब क्या है कि जो सिंगल यूनिट कनेक्टेड हुआ ना, दैट इज नोन एज मोनोमर, और उसका पॉलीमराइजेशन हुआ जिससे वी आर गेटिंग द पॉलीथीन. सो दिस पॉलीथीन is a macromolecule. Easy? Next is polymerization reaction, the reaction in which such polymers are obtained, that is known as polymerization reaction. Now, so in today's session, first of all we are taking some basic polymers. First one is nylon 6. Nylon जो है ना polymer, it is made by two scientists. First was American, another was British. Okay, and both were belonged from New York and London. That's why it is known as nylon. New York and London. That's why it is known as nylon. 6 means here जो monomer which is used here, it contains 6 carbon atoms. तो चलो अब ध्यान से देखना. C double bond O, it is attached with NH, और नीचे वाला जो पार्ट है ना, that is like benzene ring, cyclohexane type. So this monomer, this part is known as caprolactam. Caprolactam. First of all, it is condensed, so it is known as self condensation polymer. Okay, so caprolactam is a monomer of nylon 6 polymer. Now see here water contains 2 ions. Which one? H plus and OH minus. Okay, and here this bond is broken, so C will be positive, N will be negative. So with CO, OH minus will be attached, and with negative charge H plus is attached. Okay, तो अब होगा क्या देख लो. C double bond O, then 1, 2, 3, 4 and 5, means how many? 5 CH2, and then it is attached with NH, and then H is attached here, OH is attached here, and H is attached here. Okay, तो ये जो H और OH है ना यहाँ पे, ये दोनों इस तरीके से अटैच हो जाएंगे.
इसका नाम है एमिनो कैप्रोइक एसिड। अब देखो अब क्या होगा, ध्यान से देखना। हाँ, this aminocaproic acid is attached with another molecule of caprolactam. Another molecule of caprolactam. ओके, तो अब यहां पे क्या होगा, ध्यान से देखो। Again, this bond is broken. C will be positive, N will be negative. Right? इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा साइड में। ओके, तो अब ध्यान से देखो, पहले मैं ये लिख रहा हूं HO, CO, then CH2 5 times, then NH. अब इसके साथ ये CO, फिर CH2 5 टाइम्स और फिर NH, और लास्ट जो H प्लस निकला ना, वो लास्ट में यहाँ पे अटैच हो गया। अब क्या होगा, अब तो पूरी एक लाइन लगेगी, हर बार कैप्रोलेक्टम होगा, okay, this bond is broken, C will be positive, N will be negative. ओके, हर बार ये मॉलिक्यूल ब्रेक होगा और हर बार ये लास्ट में अटैच होता जाएगा। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे, ये CO जो दिख रहा है ना आपको, दैट इज C डबल बॉन्ड O। अब CH2 हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स, और लास्ट में NH। तो हर बार इसका रिपीटेशन होता जाएगा। नाउ N मॉलिक्यूल्स ऑफ कैप्रोलेक्टम्स आर अटैच्ड विथ दिस पार्ट, और हर बार ये ब्रेक होके ज्वाइन होता जाएगा, ब्रेक होके ज्वाइन होता जाएगा। तो किसका रिपीटेशन हुआ, इस यूनिट का जो दिख रहा है ना यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, उस यूनिट का कंटिन्यूअस रिपीटेशन होगा। एंड देन आफ्टर वी आर गेटिंग नाइलॉन 6 प्रोडक्ट, we are getting nylon 6 product. So thus we are getting nylon 6 from caprolactam. So from caprolactam, water is added into it, aminocaproic acid is formed, this is obtained, another molecule of caprolactam is attached, then n number of caprolactams are attached. This is the basic unit of it. So next preparation is of PHBV. P, it is polyhydroxy butyrate co-beta hydroxy valerate. Okay, again polyhydroxy butyrate co-beta hydroxy valerate, polyhydroxy butyrate co-beta hydroxy valerate, PHBV, polyhydroxy butyrate co-beta hydroxy valerate, it is PHBV. इजी। चलो अब इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। यहाँ पे जो दो आइसोमर्स यूज होते हैं, सॉरी दो मोनोमर्स जो यूज होते हैं, देखो उसमें इतना पार्ट कॉमन है, OH CH CH2 COOH, HO CH CH2 COOH, यहाँ पे आएगा नीचे CH3 और यहाँ पे नीचे आएगा CH2 CH3, बस इतना ही चेंज। ओके, यहाँ पे आएगा CH3 और यहाँ पे आएगा CH2 CH3,
ओके चलो अब देखो इसका नाम क्या होगा वो हम ध्यान से देखते हैं। देखो COOH इज अ फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है दैट इज अल्फा कार्बन, और अल्फा से जो कार्बन अटैच्ड है वो है बीटा कार्बन, और बीटा पे OH है यहाँ पे, तो इसका नाम होगा बीटा हाइड्रोक्सी, और कॉमन नेम IUPAC नेम होगा ब्यूटेनोइक एसिड, लेकिन कॉमन नेम है तो ब्यूटेरिक एसिड। Second one is COOH containing carbon is known as alpha. The carbon which is attached with alpha is known as beta. Okay, so this one is beta hydroxy 5 then valeric acid. दोनों के innumerable units are attached, N and N. ओके दोनों के इनन्यूमरेबल यूनिट्स N यूनिट्स। अब होगा कैसे, ध्यान से देखो, यहाँ का OH और ये H क्या बनाएगा NH2। ओके यहाँ का H आगे वाले मॉलिक्यूल के साथ, चलो वो कैसे वो भी मैं आपको समझाता हूँ, और यहाँ का OH ओके वो इसके बाद वाले कंपाउंड के साथ। अब बचा क्या एक बार देख लेते हैं, तो ये O से हम स्टार्ट करेंगे, O CH CH3 then CH2 then CO, उसके बाद ये अटैच हो रहा है इस O के साथ, CH इसके साथ CH2 CH3, उसके साथ CH2 इसके साथ CO डैश। ओके अब इसके N यूनिट्स, तो पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलरेट, दिस इज अवर PHBV, अगेन दिस इज अवर PHBV, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलरेट, ओके PHBV। अब एक चीज़ आपको समझानी थी कि ये वाला H और ये वाला OH कैसे जाएगा, तो ध्यान से देखो, तो उसके लिए पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे समझाता हूँ। चलो जो राउंड कर रहा हूँ दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, एंड दिस वन इज बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड, ऐसे 1 बाय 1 सब यूनिट्स अटैच होंगे। चलो समझ में आ गया होगा। अब होगा क्या, इस साइड का OH और इस साइड का H, इस साइड का OH इस साइड का H, इस साइड का OH H OH H OH H OH H OH H OH H OH देन H OH देन H OH देन H, और फिर ऐसे होके ऐसे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होके आपको ऐसे यूनिट्स कनेक्ट हो जाएंगे। अब हम जब पॉलीमर का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम करते क्या है, कौन से यूनिट का रिपीटेशन हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं देखो चलो एक राउंड वाला और एक बॉक्स वाला। राउंड वाला कौन सा था, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, तो देखो इस साइड वाला भी H गया ना, और फिर इस साइड का तो OH गया ही गया, इस साइड का H गया, चलो वो तो हमने कंसिडर कर दिया, लेकिन इस साइड का OH भी गया। ओके तो जब हम इनन्यूमरेबल यूनिट्स दिखाए ना, तो हम दोनों साइड से, इस साइड से OH और इस साइड का H रिमूव करेंगे, इस साइड का OH और इस साइड का H हम रिमूव करेंगे, तो बनेगा क्या, इस O से हम स्टार्ट करेंगे, देख लो, फिर सेकेंड पार्ट CO तक हम लिमिट रखेंगे CO के, उसके बाद OH तो चले जाएगा ना, यहाँ पे हम NH2 ही लिखते हैं। ओके तो चलो अब ध्यान से देखो, अब मैं यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहा हूँ, तो वो ध्यान से देखना। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक,
इट इज नोन एज पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर का मतलब क्या है, देखो बीच में COO पॉलीएस्टर ग्रुप है। दिस पॉलीमर इज नोन एज कोपॉलीमर। जब भी दो मोनोमर्स अटैच होते हैं ना एक दूसरे के साथ तो उसको हम बोलते हैं कोपॉलीमर। अगर सिंगल है तो फिर उसको हम बोलेंगे होमोपॉलीमर, दो है तो उसको हम बोलेंगे कोपॉलीमर। इज इट क्लियर? थर्ड थिंग, दिस इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर मतलब बॉडी में इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। ओके, एंड लास्ट वन, दिस इज कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन का मतलब ये है कंडेंसेशन पॉलीमर का मतलब ये है कि कंडेंसेशन मतलब कि जब भी दो मोनोमर्स अटैच होते हैं, अगर आपको एज अ साइड प्रोडक्ट अल्कोहल, वाटर, अमोनिया या तो फिर HCl रिलीज होता है ना, तो उसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। अगेन पॉलीएस्टर कैसे हुआ, तो पॉलीएस्टर मतलब बीच में देखो COO ग्रुप है, यहाँ पे भी CO इसके साथ तो फिर O ही अटैच होगा, तो पॉलीएस्टर ग्रुप इसको हम बोलेंगे। सेकेंड इज कोपॉलीमर। कोपॉलीमर कैसे है, जब दो मोनोमर्स एक दूसरे से अटैच होते हैं तब उसको हम बोलेंगे कोपॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है, बायोडिग्रेडेबल मीन्स जब दो मोनोमर्स अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ तो बायोडिग्रेडेबल मीन्स वो अपनी बॉडी में डिकम्पोज हो सकते हैं। ओके, तो ये जो PHBV है ना, वो यूज़ कहाँ पे होता है, जो कैप्सूल आपने देखी है ना, ओके, तो वो कैप्सूल की कोटिंग के प्रिपरेशन में यूज़ होता है। कैप्सूल में अंदर आपने देखा होगा क्या है, पाउडर होता है कैप्सूल के अंदर, तो जो कैप्सूल की कोटिंग होती है ना, उसकी प्रिपरेशन में ये PHBV यूज़ होता है। एंड इट इज़ डिग्रेडेड बाय द आवर बॉडी मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो उससे तो वो डिग्रेड हो सकता है, सो इट्स अ बायोडिग्रेडेबल। और कंडेंसेशन कैसे है कि जब एज अ साइड प्रोडक्ट आपको ये चार मिले, अल्कोहल, वाटर, अमोनिया एंड HCl, देन सच polymers are known as condensation polymer. ओके, आगे हमने जो नाइलॉन 6 किया था, तो नाइलॉन 6 ये है फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ कंडेंसेशन। और जब भी नाइलॉन वर्ड आता है ना, जब भी नाइलॉन वर्ड आता है तो उसके लिए हम जनरली बोलते हैं पॉलीअमाइड। पॉलीअमाइड का मतलब क्या है, पॉलीअमाइड का मतलब क्या है कि उसमें अमाइड ग्रुप है। देखो NH के बाद CO आएगा, लॉन्ग चेन मिलेगी ना, देखो यहाँ पे भी बीच में NHCO दिख रहा है आपको। तो जब लॉन्ग चेन मिलती है तब इसको हम बोलेंगे पॉलीअमाइड। ओके, और ये है सेल्फ कंडेंसेशन। थर्ड थिंग, इट्स अ होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर मीन्स व्हेन only one type of monomer is used to make the polymer. Okay, then it is known as homopolymer. Next, next one is nylon to nylon 6. चलो, नाइलॉन टू नाइलॉन 6 मीन्स जब भी नाइलॉन वर्ड आता है तो कौन सा होगा, ये पॉलीअमाइड। यहां पे भी दो मोनोमर, सो कोपॉलीमर। थर्ड थिंग, इट इज ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। जब स्टिचेस लेते हैं ना तब हम ऐसा बोलते हैं, पता हो तो, कि भाई जो बाहर के स्टिचेस होते हैं ना तो वो तो हमें निकालने होते हैं, पता है ना, और जो अंदर के स्टिचेस होते हैं ना तो वो इजीली वो नाइलॉन टू नाइलॉन 6 थ्रेड से बने होते हैं। जो थ्रेड होता है ना वो उससे बना होता है, तो वो बॉडी के अंदर ही डिकम्पोज हो जाता है।
दैट इज दिस नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। तो उसके लिए फर्स्ट है ग्लाइसिन, इट इज़ एन एमिनो एसिड, बायो स्टूडेंट को तो ये पता होगा, दिस वन इज ग्लाइसिन। एंड सेकेंड इज एमिनो कैप्रोइक एसिड, अभी आया था नाम, याद हो तो, एंड इट इज ऑल्सो मेड फ्रॉम कैप्रोलैक्टम, NH2, कैप्रोइक मतलब 6 कार्बन एटम्स, तो उसमें 5, एंड लास्ट वन इज COOH। चलो दोनों के N यूनिट्स कंबाइन हो रहे हैं, तो ये जब दोनों के कंबाइन होंगे तो यहाँ का OH और ये H, यहाँ का OH और इस साइड का H, अब समझाने की ज़रूरत नहीं है, NH2। चलो तो हम बोल सकते हैं ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। ओके, अब बचा क्या, चलो एक बार लिख देते हैं जिससे क्लियर हो जाए। सो वी विल स्टार्ट विथ दिस NH, CH2, CO, देन NH2 में से NH, CH2 5 times, then CO N times। ओके, तो दिस वन इज नाइलॉन 2, जो फर्स्ट मोनोमर है उसमें 2 कार्बन एटम्स, ये रहा फर्स्ट एंड सेकेंड, और दूसरा जो मोनोमर है उसमें 6 कार्बन एटम्स, 5 यहाँ पे और 6 यहाँ पे। सो दिस इज नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, इजी। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज टेरिलीन, another word is Dacron। ओके, तो चलो अब ध्यान से देखो, टेरिलीन, डेक्रॉन, और उसके बाद हम लेंगे नाइलॉन 6। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ऑल्सो कोपॉलीमर। चलो कोपॉलीमर का मतलब तो समझ में आ गया होगा आपको। हियर ऑल्सो 2 मोनोमर्स आर यूज्ड। ओके, नेक्स्ट, अब टेरिलीन में जो मोनोमर यूज होता है, दैट मोनोमर इज फर्स्ट इज टॉरथेलिक एसिड, जिसका स्ट्रक्चर है बेंजीन के ऊपर 2 COOH, इसका नाम है टॉरथेलिक एसिड, जिसके N यूनिट्स, और दूसरा है इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर क्या है, चलो ये तो पता ही होगा। ओके, इथेन 1,2 डायोल इज इथिलीन ग्लाइकॉल। तो दोनों के N यूनिट्स हैं, क्लियर। अगेन दोनों के N यूनिट्स है यहाँ पे। तो चलो अब ध्यान से देखना, तो टॉरथेलिक एसिड एंड इथिलीन ग्लाइकॉल दोनों के बीच में रिएक्शन होगी। अब होगा क्या, साइड प्रोडक्ट क्या मिलेगी, तो देखो पहले साइड प्रोडक्ट तो मिलेगी ना यहाँ पे, आंसर इज यस, साइड प्रोडक्ट होगी। कौन सी, यहाँ से OH और ये H, ये H और इस साइड का OH विल गिव NH2O। ये उसके आगे वाले मॉलिक्यूल के साथ, ये उसके बाद वाले मॉलिक्यूल के पास, क्लियर। अब होगा क्या, यहाँ CO से स्टार्ट करना है, C डबल बॉन्ड O, देन बेंजीन रिंग, CO, देन यहाँ से H गया तो बचा क्या, O से हम स्टार्ट करेंगे, तो ये O, देन CH2CH2O डैश। सो दिस इज नोन एज टेरिलीन। दूसरा वर्ड है इसके लिए डेक्रॉन। ओके,
टेरिलिन और डेक्रॉन। चलो, तो इतना तो क्लियर। तो चलो, वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड, सो इट इज कंडेंसेशन पॉलीमर। ओके, नेक्स्ट वन, इट इज अ पॉलीएस्टर। क्यों? देखो बीच में एस्टर ग्रुप है। ओके, और फैब्रिक बनाने में यूज़ होता है, चलो ये तो पता ही है आपको। तो कोपॉलीमर क्यों? दो मोनोमर से कंडेंसेशन क्यों? साइड प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। पॉलीएस्टर क्यों? बीच में COO ग्रुप है। ओके, अब इसका यूजेस और वो सब जो फंडामेंटल्स है वो आपको देख लेना है अपनी तरफ से। ओके, नेक्स्ट इज नाइलॉन 6,6। चलो 6,6 मतलब यहाँ पे भी दो मोनोमर्स हैं, सो अगेन इट इज कोपॉलीमर। नाइलॉन वर्ड आया मतलब कौन सा? पॉलीअमाइड। तो जितने भी नाइलॉन है ना वो सब पॉलीअमाइड्स हैं। ओके, थर्ड बाकी की जो कंडीशंस वो लिखते हैं। चलो, सो हियर द मोनोमर्स विच आर यूज्ड, फर्स्ट इज एडिपिक एसिड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्स कंपल्सरी याद रखने होंगे। CH2 4 टाइम्स और 2 टाइम्स COOH। Here also COOH. Another molecule is HMDA. HMDA means hexamethylene diamine. ओके, शॉर्ट फॉर्म है इसका HMDA। चलो, अगेन इन्यूमरेबल यूनिट्स दोनों के। OH और ये H, इस साइड का H, इस साइड का OH, मिलेगा क्या आपको? NH2O। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? CO से हम स्टार्ट करेंगे। Then CH2 4 times, then again C double bond O, फिर यहाँ पे आएगा NH, फिर CH2 6 times, then NH dash। ओके, N यूनिट्स इसके मिल जाएंगे, सो इट इज नाइलॉन 6,6। चलो, तो कोपॉलीमर है, क्यों? पता चल गया। पॉलीअमाइड, तो जितने भी नाइलॉन है सब पॉलीअमाइड है, याद रखो ये। ओके, उसके बाद और कंडीशन क्या थी? कंडेंसेशन पॉलीमर है ये। मेन इसका यूज है फिशिंग नेट बनाने के लिए। ऐसे बहुत सारे उसके डिफरेंट यूनिट्स हैं। ओके, अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने टॉरथेलिक एसिड लिया है। इफ वी टेक ओनली थैलिक एसिड, अगेन इफ वी टेक ओनली थैलिक एसिड, तो थैलिक एसिड में यहाँ पे देखो पैरा पोजीशन पे है ना, ये जो बेंजीन रिंग है ना, अगर बेंजीन रिंग में हम 1,4 पोजीशन ले तो इसको हम बोलेंगे पैरा पोजीशन, और 1,2 पोजीशन ले तो उसको हम बोलेंगे ऑर्थो पोजीशन। तो ऑर्थो पोजीशन पे अगर 2 COOH ले तो उसका नाम है थैलिक एसिड, एंड इफ इट इज पॉलीमराइज्ड विथ इथिलीन ग्लाइकॉल तो क्या होगा? ध्यान से देख लो, तो क्या होगा? तो आपको जो मिलेगा ना उसका नाम है ग्लिप्टाल। तो ग्लिप्टाल और डेक्रोन में डिफरेंस क्या है? सिर्फ थैलिक एसिड और टॉरथैलिक एसिड का ही, बाकी का पूरा सेम। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना, बेंजीन रिंग यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे एक COOH, यहाँ से भी एक COOH, इसके N यूनिट्स, दिस इज थैलिक एसिड। It is combined with ethylene glycol same way। ओके, चलो साइड प्रोडक्ट क्या होगी यहाँ पे? तो इस साइड का OH, इस साइड का H, इस साइड का H, इस साइड वाला OH, NH2O होगा।
ओके, अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, C डबल बॉन्ड O डैश, देन बेंजीन रिंग, CO, then this O, then CH2 dash, then O last N dash. N molecules. So this is ethylene glycol. So phthalic acid and ethylene glycol. Okay, phthalic acid and ethylene glycol. तो दोनों कंबाइन होंगे जिससे आपको मिलेगा ग्लिप्टाल. चलो, ग्लिप्टाल भी कैसा है? फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलीएस्टर, उसके बाद बोले तो कंडेंसेशन, उसके पॉलीमर, उसके बाद बोले तो चलो 2 यूनिट्स है तो कोपॉलीमर भी है ये. Okay, so Gliptal is done, and now last we are taking 2 substances. Number 1 is bakelite and another is melamine. तो चलो अब बारी आती है बेकेलाइट की. बेकेलाइट में इसका दूसरा नाम है फिनोल फॉर्माल्डिहाइड रेजिन. ओके, तो चलो ध्यान से देखना. फिनॉल, फिनॉल का स्ट्रक्चर तो स्टूडेंट्स पता ही होगा आपको, बेंजीन के ऊपर OH. इट इज कंबाइंड विथ फॉर्माल्डिहाइड. स्टूडेंट्स फॉर्माल्डिहाइड एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर HCHO ये है, तो इसका मतलब है C डबल बॉन्ड O and 2H. ओके, CH, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे CH2 डबल बॉन्ड O. चलो, अब ये दोनों कंबाइन हो गए इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस और OH माइनस. तो होगा क्या? ये एक बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ का एक H, यहाँ का और यहाँ का. आपको टोटल 3 सब्सटेंसेस मिल रहे हैं. ध्यान से देखना, आपको टोटल 3 सब्सटेंसेस मिल रहे हैं. कैसे मिलेंगे? ध्यान से देख लो. OH और यहाँ पे CH2O था ना, तो उसके साथ ये जो H था यहाँ पे आ गया और ये कनेक्शन हो गया. ऐसा और एक कंपाउंड मिल रहा है जहाँ पे 2 जगह पे CH2OH आएगा. आपको और एक कंपाउंड मिल रहा है जिसमें 3 जगह पे CH2OH आएगा. ओके, तो अब ये जो कंपाउंड मिला ना आपको, ये वाला, दैट इज यूज्ड फॉर द पॉलीमराइजेशन. तो किसका पॉलीमराइजेशन होगा? ध्यान से देखो, बेंजीन के ऊपर OH और ऑर्थो पोजीशन पे जो CH2OH है ना, ये वाला. ओके, अब इसका जब हम पॉलीमराइजेशन करेंगे तो इसके भी अब इन्यूमरेबल यूनिट्स हम लेते हैं. ध्यान से देख लो कैसे है. बेंजीन, OH एंड देन CH2, नीचे OH है ना, वो नहीं लिख रहा हूं मैं. बेंजीन, OH, CH2, नीचे OH, डॉट लिख रहा हूं, दैट इज OH. ऐसा कंसिडर करो. ओके, OH ऑर्थो पोजीशन पे CH2OH. तो अब क्या होगा? ध्यान से देख लो, यहाँ का H और जो डॉट लिखा था वो तो OH था ना, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया. इजी. और ऐसे आपको लॉन्ग चेन मिल गई. किसकी?
So this long chain is known as Novolec, and this Novolec is a linear polymer. It is a linear polymer. Clear? Next. अब ध्यान से देखो, इट इज़ अ लीनियर पॉलीमर. अब इसका पॉलीमराइजेशन हम करेंगे अगेन किससे? CH2 डबल बॉन्ड O से. इसके भी N यूनिट्स. तो अब क्या होगा, ध्यान से देखना. मैं यहाँ ये जो नोवोलेक की सीरीज है ना 2 टाइम्स लिख रहा हूँ, लेकिन इन्वर्ट फॉर्म में. ध्यान से देख लो. चलो फर्स्ट सीरीज, बेंजीन के ऊपर OH, CH2, OH, CH2, OH and CH2 dash. ओके डैश. अब दूसरी एक सीरीज लिख रहा हूं पूरी रिवर्स, OH, CH2, OH and then CH2. ओके OH और CH2 डैश. तो अब ध्यान से देखो, जो हमने एडिशनल ज़्यादा ये जो फॉर्माल्डिहाइड लिया है ना, CH2 डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड O, जो डॉट लिखा है दैट इज डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड O. तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ क्या H और ये वाला H और ये O क्या बनाएगा, H2O. ऊपर वाला H, नीचे वाला H और ये O, ऊपर वाला H और नीचे वाला H और ये O. और इसकी लॉन्ग चेन आपको मिल जाएगी, इसकी भी लॉन्ग चेन आपको मिल जाएगी, N यूनिट्स. दैट इज नोन एज बेकेलाइट. Okay, this one is bakelite. So that's the funda. Next and last, today's last compound is melamine. अब देखो मेलामाइन में जो यूनिट यूज होता है ना, दैट इज नोन एज मेलामाइन इटसेल्फ. ओके, तो मेलामाइन का स्ट्रक्चर ध्यान से देख लो. नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन. यहाँ पे नाइट्रोजन एम्बेडेड है. एम्बेडेड मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ अ रिंग. ओके, बाहर आपको ड्रॉ नहीं करने हैं. 3 डबल बॉन्ड्स मतलब एरोमेटिक रिंग है ये. NH2, यहाँ पे भी NH2, यहाँ पे भी NH2. ओके, इट इज कंबाइंड विथ अगेन CH2 डबल बॉन्ड O. तो पहले आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखना. ये एक बॉन्ड ब्रेक होगा. यहाँ का जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ का जो हाइड्रोजन है ना, वो हाइड्रोजन इसके साथ O के साथ अटैच होगा और ये नाइट्रोजन कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा. तो बनेगा क्या, ध्यान से देख लो. नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन. ओके, 3 डबल बॉन्ड देख लो. ओके, ये NH2 की जगह पे NH और फिर CH2OH. यहाँ पे भी NH2, नीचे भी NH2. ओके, अब इसका पॉलीमराइजेशन होगा. चलो, ये था मेलामाइन और ये है फॉर्माल्डिहाइड. ओके, अब इसमें क्या होगा, NH2O मिलेगा. ओके, यहाँ का OH और ये वाला H और ऐसे ही नीचे भी लाइन मिलेगी. तो वो अब डायरेक्ट हम इंडिकेट कर देते हैं, जैसे नोवोलेक में से मिला था ना वैसे ही. यहाँ पे भी NH डैश, यहाँ पे भी NH डैश और इसका N यूनिट.
So this is melamine. Okay, so students, these are the preparations of some polymers. Okay, और एक लास्ट थिंग एक्सप्लेन करनी रह गई है, यहाँ पे भी दो मोनोमर्स है, सो कोपॉलीमर, कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं. मेलामाइन और बेकेलाइट में आपको याद रखना है, बोथ आर नोन एज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर. तो वो जब नेक्स्ट लेक्चर में थ्योरी करवाएंगे ना तब समझाऊंगा मैं. ओके, यहाँ पे भी देखो कोपॉलीमर, देखो NH2 रिलीज हो रहा है, सो कंडेंसेशन पॉलीमर. ओके, कंडेंसेशन पॉलीमर. उसके बाद this is also cross linked polymer. Okay, so finally preparations are done. नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ प्रिपरेशंस और कुछ थियोरीज लेंगे. तो स्टूडेंट्स, चलो इसी के साथ अपना आज का लेक्चर कंप्लीट होता है. गुड बाय.